Okay. No, so that because it is available in the AIG. Just a minute, no? Let me stop the recording. So welcome you all to the training session on Kaizen concept. What we will have in this training session, it's not today's content, the entire content, clause of confidentiality, then what is the meaning of Kaizen, where the Kaizen has been originated. We will discuss the difference between the Kaizen and innovation and Kaizen and problem solving. Many a times these concepts are confused with each other. Kaizen philosophy, what are the guiding principles? Kaizen and management. Kaizen process, identifying the potential Kaizens. Then how we are going to implement the Kaizen. After that, we will also look into the waste elimination. We call it the three Mu's, that is Mura, Mura and Muri. It is for the waste, variation and the strain. Okay, it's the Japanese concept and basically involved in the lean manufacturing, but we are also covering as a part of Kaizen here. Then typical format for the Kaizen recording we will show you. Just a minute. Then we are continuing with this, continuing with the Kaizen format, which will be used for the this will be covered tomorrow, and areas where Kaizen can be implemented, recommended books to understand the Kaizen in detail. So आपको अगर Kaizen के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, so we have certain books recommendation which you can go through, and then we will conclude the session. Before that we start, or let us continue. So clause of confidentiality, as I am telling, for the 7QC also, in this training program also, the training material is of proprietary nature. Do not share the recordings, screenshots, any part on any of the public platform or professional platforms. Okay, keep it with you, share the knowledge. Do not just blindly share the documents. So what does the Kaizen means? Kaizen क्या होता है? So it's a Japanese concept. जापान से ओरिजिनेट हुआ है. Okay, and the Kai, it is basically a combination of two words, Kai and Zen. So Kai का मतलब होता है change और Zen का मतलब होता है good. So Kaizen को अगर हम ऐसे बनाए जाएंगे तो it होता है a change for better, a change for betterment, and it is nothing but a improvement, a kind of improvement. So you are just changing for the betterment, not changing for the say detriment. It is basically changing for the improvement. So कोई भी change हम करते हैं किस तरह के improvement के लिए, उसको बोला जाता है Kaizen. So this is change, Zen is good, change for better. So एक Kaizen origin कहाँ से हुआ और किसने किया? यह है मिस्टर मसाकी इमाई-सान. ओके, उनकी थर्ड बुक अभी लेटेस्ट आने वाली है ना. फ्यू डेज बैक ओनली आई हैव सॉ हिज one post that he is releasing his third book. So what was his first book? First book was in the 1986. मसाकी इमाई-सान जापानीज इंडस्ट्रियल थेरिस्ट थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, जो कि 1930 में बॉर्न हुए थे और ही इज अलाइव टू डेट ऑल्सो, है ना. ही इज द फाउंडर ऑफ काइजन इंस्टीट्यूट, ओके, which was established in 1985, but where? In Switzerland. So many of the people will think कि Kaizen Institute है, Japanese person ने निकाली है, so it is in Japan. No, that was established first in the Switzerland in 1985. And this Kaizen concept has been introduced by him. Masaki Imae-san ने Kaizen concept दिया. Just a minute. Kaizen concept दिया 1986 में. थ्रू हिज बुक, वो बुक का नाम था द काइजन, द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस.
है ना। तो उन्होंने जो बुक लिखी उससे उन्होंने ये जो कंसेप्ट है इसको पूरी दुनिया में फैलाया है। नाउ कमिंग टू द काइजन वर्सेस इनोवेशन, क्या होता है काइजन क्या है और इनोवेशन क्या है। काइजन जो होता है, दोनों दोनों चीज है, वेदर इट्स अ काइजन और वेदर इट्स अ इनोवेशन, दोनों का एक ही मकसद है। व्हाट इज दैट? बोथ आर एम्ड एट चेंजिंग समथिंग फॉर गुड और फॉर बेटरमेंट। ओके, पीपल ये भी बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मींस परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही ऐसी चीज है जो कि कांस्टेंट है, परिवर्तन तो होना ही है। ओके, सो बोथ दिस थिंग वेदर इट्स काइजन और इनोवेशन, दोनों की दोनों का एम एक ही है, दैट इज चेंजिंग समथिंग फॉर गुड। नाउ इनोवेशन, इनोवेशन में क्या होता है? इट इज अ शॉकिंग और रेडिकल चेंज, कंप्लीट चेंज होता है ना, एक बड़ी स्टेप होती है और उसके लिए आपको इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ वन डे टास्क, इट रिक्वायर्स अ वेरी मच ऑफ अ प्लानिंग। और काइजन में क्या होता है? ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस है, सिंपल चेंजेस है। अभी जैसे आदमी ने हॉवरक्राफ्ट पे फ्लाई करना सीखा, सो इट इज नॉट अ काइजन, इट्स अ इनोवेशन। उनको वो पर्टिकुलर जो गियर्स है वो तैयार करने पड़े, वो मशीन तैयार करनी पड़ी, तब की जाके आदमी फ्लाई कर सकता है यूजिंग दैट। अगर हमने वो लगाया तो वी कैन फ्लाई यूजिंग दैट, सो दैट इज बेसिकली इनोवेशन। बट आदमी की स्पीड जो है, रफ्तार बढ़ी, क्यों कैसी बढ़ी? बाय वे ऑफ स्मॉल स्मॉल चेंजेस। हुसैन बोल्ट एक दिन में वो पर्टिकुलर रनिंग नहीं कर पाया, उन्होंने डे बाय डे प्रैक्टिस करके, 4 साल की प्रैक्टिस होती है तब की जाके ओलंपिक में गोल्ड मिलता है। सो दैट इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन में आप देखो, मोबाइल फोन पहले कैसे आते थे? कीपैड पे आते थे। ठीक है, अब हमारे पास टच स्क्रीन आने लगे, सो इट इज बेसिकली इनोवेशन। पूरी जो उसकी टेक्नोलॉजी है वही चेंज हो गई। बट अभी जो टच स्क्रीन में आते हैं तो वेरियस साइज के आते हैं, कोई 6 इंच, कोई 4 इंच, कोई 3 इंच, कोई 5 इंच, है ना, 3 इंच का तो नहीं होगा बट 5 इंच, 6 इंच, अलग अलग साइज के आते हैं। कैमरा कोई लेफ्ट में लगा है, राइट में लगा है, सो दैट डजंट रिक्वायर अ कंप्लीट इनोवेशन इन दैट। उसमें तो क्या छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, एस्थेटिक चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, अब उसी में अगर नेक्स्ट जैसे 5G में जाना है, 4G से when you want to go to the 5G, so that will be basically a radical change which requires a technological change, which requires the equipments for that. So this is the difference between the Kaizen and innovation. Another example है like a incandescent light bulb, वो येलो कलर के लाइट बल्ब हम यूज करते थे पहले। नाउ उसी में you will have various types of lights. Somebody has raised the hand, just a minute. Okay, so there were incandescent lights in use. In that 10 वैट का भी आता, 40 वैट का, 60 वैट का, 100 वैट की लाइट्स आते थे। सो वो जब बनते थे देर इज नो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। ओके, वो एक ही टाइप की था, बट पहली बार जब बना था लाइट, दैट वाज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब उसी लाइट को हम आप छोटा बड़ा अलग अलग शेप्स का बनाओगे तो नो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, इट इज जस्ट अ काइजन। जैसे बॉटम है, कहीं पे थ्रेडेड रहते थे, कहीं पे जस्ट B22 बॉटम आता है, वो उसको शायद ऐसे बोलते हैं, पुश एंड टर्न। सो दैट इज बेसिकली अ स्मॉल काइजन, टेक्नोलॉजी इज नॉट इन्वॉल्व, है ना, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसे में बन जाता था। बट आफ्टर दैट द CFL bulbs come. So the technology what we have for incandescent light bulb, you cannot make the CFL bulb using the same टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, इक्विपमेंट चेंज करना पड़ेगा। इट्स अ रेडिकल चेंज, मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट चेंज है। सो दैट इज अ इनोवेशन। अब CFL से वी वेंट टुवर्ड्स द LED bulb and everything is meant for something improvement, betterment. सो इनोवेशन भी है तो भी इंप्रूवमेंट ही है। नाउ LED बल्ब में भी आप फिर वेरियस टाइप्स के आएंगे, कलर्स के आएंगे। अब वो उसके लिए आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई छोटा आएगा, कोई बड़ा आएगा। सो टेक्नोलॉजी इज देयर नाउ,
Now small changes keep on coming. ठीक है, so that is a small changes करेंगे it becomes a Kaizen, और टेक्नोलॉजिकल चेंज करेंगे that becomes a innovation. अपने जो टीवीज थे, टीवीज में कितने इनोवेशंस हुए. अर्लियर इट वाज अ सीआरटी, ओके, कैथोड रे ट्यूब आते थे. आफ्टर दैट फ्लैट स्क्रीन, आफ्टर दैट प्लाज्मा, देन एलईडी, एलसीडी, देन एलईडी. सो एलसीडी, those who are using the LCD, those companies manufacturing the LCD cannot make the LED. They need to change the technology. और जिन्होंने चेंज नहीं किया, they perished. Okay, so you have to be with the change and you have to sense the change, what is happening. कंप्लीट चेंज करना है, दैट इज इनोवेशन. एंड स्मॉल चेंज करना है बेटरमेंट के लिए, जहां पर आप विजडम यूज करते हो इंस्टेड ऑफ टू मच ऑफ अ कैपिटल, टू मच ऑफ अ मनी. अब छोटी सी चीज है यहाँ पर, इट्स अ ओपन सेशन फॉर यू पीपल नाउ. यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो कि काइजन क्या क्या दिखते हैं आपको, ऐसे क्या चेंजेस किए गए इस साइकिल में. साइकिल तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, बस दो पहिए है, सीट है, हैंडल है, बस दैट साइकिल. द पर्पज इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, द पर्पज इज सॉल्व. बट उसके अंदर कुछ काइजन्स किए गए जो मैं यहाँ पे जो साइकिल दिखाई है उसमें है. सो कैन यू पीपल प्लीज टेल मी व्हाट काइजन यू कैन स्पॉट हियर इन दिस पिक्चर. Left handle. Basket. Okay, Two extra wheels. One is basket is here. And one. Okay. Two extra wheels. Left handle. Okay, wheel Carrier. is there. Carrier is there. Okay. Anything else? Colorful. Okay, Sir, that is for the left handle. which one? Horn. Left handle. Something is there. Horn type. Horn type. Yeah. Even this can be a part of Kaizen. है ना? Even the seat cover, if seat cover is there, it is not very visible to you people, so you may not identify. But you just imagine that it is a cushion cover, additional to the normal one. है ना? Now additional colorful. Even color aesthetics is there. Now, sir, yeah. Front wheel design. Yes, okay. Sir, we have to add the brakes, sir, in left hand side. In left hand side, we have to add the brakes, sir. That must have missed in the this one picture, है ना. छोटी साइकिल है इसलिए उन्होंने दिया नहीं है. It's a baby cycle, so they don't require the brake on the back side also. Okay, sir. Yeah. So now you people have spotted it. Now even this chain guard can be a part of that Kaizen, because earlier अगर छोटा गार्ड था उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को लेके, चेन गिरने के या समथिंग प्रोटेक्शन के लिए भी. they should not be encountering any this one safety issue. So ये चेन गार्ड भी जो कंप्लीट चेन गार्ड है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ Kaizen. ये छोटा सा जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इट रिफ्लेक्ट्स, फ्लोरोसेंट है ये, जब रात में चलाते हैं. सो यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर दैट समबडी इज गोइंग ऑन. कभी कभी ये पीछे साइड भी रहता है. कैरियर है. अब ये चीजें नहीं रहेगी तब भी साइकिल अपना काम करेगी, साइकिल चलने का काम है वो करेगी, है ना. जिन लोगों ने बचपन में साइकिल देखी थी, देयर वेयर जो बड़ी साइकिल है, द रॉड वाज हियर एंड देयर वाज अ स्मॉल बेबी चेयर, बेबी सीट वाज पुट हियर, है ना. वन foot rest was there which can be folded. So all these are nothing but a Kaizen. Sometimes it doesn't come in build, people have put it afterwards. तो कोई भी छोटा छोटा चेंज करते हो आप, और इससे आपको क्या मिलता है, एक तो आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है. अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी सेल्स ज्यादा बढ़ती है. सेम थिंग वी कैन मेक इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑल्सो. So this is about Kaizen and innovation. Now Kaizen and problem solving. Problem solving हम कब करते हैं? When the problem occurs, then we go for the problem solving. So कभी भी there is a deviation from the set standard. हमारा प्रोसेस है, टेम्परेचर हमारा इस जगह चलना चाहिए था, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो वी आर जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना. कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया, वी गॉट द कंप्लेंट, वी आर टेकिंग सम एक्शन, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. डेफिनेटली इन द प्रोसेस वी विल वी विल improve something. In problem solving also we will improve something, but that is not the
termed as a Kaizen only, because it's a reactive approach. But Kaizen क्या करता है? Kaizen will look for improvement in the stable processes, क्योंकि improvement is a never ending process, है ना? Like ourselves also, we will, why you are attending the training, why you are improving your skills, ये नहीं कि आप कहीं पे फेल हो चुके हो, because you want to improve, because you want to acquire new skills, competence, because you want to improve yourself, ना? आपका नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस, इसको इंप्रूव करना है. सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ काइजन, इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ रिएक्टिव अप्रोच. कुछ खराब हुआ, फिर हम कुछ तो भी इंप्रूव करेंगे. गॉट इट? सो काइजन इज लुकिंग फॉर द इंप्रूवमेंट इवन इन द स्टेबल प्रोसेसेस, क्योंकि इंप्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं है. You can always find improvement in each and every process. Nothing is perfect, so there is always a scope of improvement. कोई प्रोसेस अच्छी चल रही है, प्रोडक्ट आउटपुट भी आ रहा है, तो भी इट कैन बी इम्प्रूव फर्दर. So before we start the core topic, how to make Kaizen, what are the steps involved, we will go through some of the principles and some of the basic things. क्योंकि Kaizen concept जो है वो तो जापान में भी यूज कर रहे हैं, और हम इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, और यूएस में भी कर रहे हैं. Why few people are successful using the same concept and why people are not so successful? उसके पीछे कारण है the attitude with which we are following this concept. Got it? क्योंकि काइजन इज नॉट जस्ट बिफोर एंड आफ्टर. पहले कुछ था कंडीशन, फिर उसके बाद हमने कुछ इंप्रूव किया, उसका एक फोटो लगा दिया, फॉर्मेट बना दिया, काइजन इज फिनिश्ड. काइजन इज नॉट समथिंग कि हमको हर महीने 25 बनाने ही बनाने हैं, या फिर काइजन ये नहीं है कि हमने इंप्रूवमेंट कर दिया ऑलरेडी और फिर उसको हमने डॉक्यूमेंट कर दिया. तो इंप्रूवमेंट कुछ तो भी हो गया है, ओके, फाइंड आउट सम इंप्रूवमेंट और उसको फिर डॉक्यूमेंट कर दिया तो काइजन हो गया. नो, उसके लिए आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा, वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा आपके टीम में, सो दैट काइजन इज इंप्लीमेंटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विद द राइट स्पिरिट, विद द राइट एटीट्यूड. और इससे आपको इतने फायदे मिलेंगे, इतनी कॉस्ट में फायदे मिल सकते हैं, सेफ्टी के ऊपर फायदे मिल सकते हैं, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, हर जगह पे. In the training program, I will give you one example where a airline has saved in lakhs at that time, है ना, in thousands of dollars by just a small improvement, by just eliminating a small wastage in the process. So Kaizen means ongoing improvement involving everybody. 7QC tools में भी हमने देखा the power of involving everybody. जब आप आपकी टीम को इन्वॉल्व करते हो, you will get lots of suggestion, okay, and your work will be much faster without involvement of a lot of money. So Kaizen क्या है? Ongoing improvement है, वो चलता रहेगा improvement. It is not कि आज कर दिया और भूल गए. No, it's a continuous process, okay, and without spending much of a money. ये सबसे बड़ा है. नहीं तो सजेशन देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये इन्वेस्टमेंट कर दो, ये अच्छा हो जाएगा साहब, ये कर दो, ये अच्छा हो जाएगा. नो, इट इज इंप्रूवमेंट involving as less as low money as possible. Use your wisdom. फिर है कि big results come from many small changes accumulated over a time. बूंद बूंद सागर बनता है. Same way, what improvement you will find, इवन आपके खुद में जो इंप्रूवमेंट बनते हैं, डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे हम कोई चीज की, तभी हमारे ऊपर इंप्रूवमेंट आता है. तो ये स्मॉल इंप्रूवमेंट जो हम हमारे अंदर भी करते हैं, that will make you a big person over a period of time. Same way, processes में भी हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे over a period of time. हो सकता है कि काइजन का रिजल्ट आपको एकदम विजिबल नहीं हो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, बट जब ये स्मॉल इंप्रूवमेंट होते हैं आपकी फैक्ट्रीज में, तो over a period of time it will start reflecting, है ना. तो ये आपको फिर over a period of time पता चलता है. नंबर 3, where there is no standard, there can be no improvement. For this reason, standards are the basis for both maintenance and improvement. में स्टैंडर्ड होना जरूरी है. प्रोसेसेस का, प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब भी कभी इंप्रूवमेंट कंपेयर करोगे, यू विल कंपेयर विथ व्हाट? इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड, विथ व्हाट यू विल कंपेयर? आपको पता कैसे चलेगा वेदर वी आर फॉलोइंग
a proper standard or not. And standard is the basis for maintenance and improvement. When we say maintenance, it is not the mechanical maintenance or electrical maintenance. We are talking about the maintenance of the system. जो हमने सिस्टम लगाया हुआ है उसका मेंटेनेंस. तो इंप्रूव जब करते हैं उसके बाद वो इंप्रूवमेंट को सस्टेन भी करना पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, एवरी डे वी वॉक 5 किलोमीटर्स, ओके, देन डे बाय डे वी इंक्रीज 100 मीटर्स एवरी डे, है ना. सो अब इसको मेंटेन कैसे रखें? इफ यू डू नॉट मेंटेन, then what will happen? One day again you will come down to 4 kilometer, 3 kilometer, 2 kilometer. So just not improvement is not only important. Sustaining that, maintaining that is also very much important. Next is, you can't do Kaizen just once or twice and expect immediate results. You have to be it in the for the long haul. इसका मतलब आपको लंबी दूरी के लिए इसके अंदर रहना पड़ेगा. It is not कि जैसे आज खाया और कल हमको पता चल गया. No, है ना. You have to be it here in the Kaizen concept for a longer period of time. फिर आपको इसके जो फ्रूट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं. Then Kaizen is like a hotbed that nurtures small changes and ongoing changes, while innovation is like magma that appears in abrupt eruption from time to time. So जैसे volcanoes होता है, so innovation कैसे है? volcano जब निकल फटता है, that is basically a innovation kind. और whereas Kaizen जो होता है ना, जो hotbed है उसका जो nurture हो रहा है थोड़ा थोड़ा, that is a Kaizen. Kaizen is about changing the way things are. Kaizen में क्या करते हैं हम? किस तरह से चीजें चल रही है उसको ही चेंज करना है हमको. ओके, इट इज अबाउट चेंजिंग द वे थिंग्स आर. और अगर हमने ये सोचा कि जिस तरह से चीजें चल रही है वही सही है, सो देयर यू कैन नॉट डू Kaizen. देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट. ठीक है. सो Kaizen मीन्स चेंजिंग द वे द थिंग्स आर. नेक्स्ट इज एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. जो जापानीज कंपनीज है या अदर कंपनीज है जहां पर एक Kaizen कंसेप्ट ये हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है और उनको उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और सेम कंसेप्ट जब हम इंप्लीमेंट करते हैं हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड व्हाट वी हैव. क्योंकि एटीट्यूड ऐसी छोटी चीज है जो बिग डिफरेंस लाती है. सो राइट एटीट्यूड से अगर आप काम करोगे Kaizen के ऊपर, आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे. नेक्स्ट इज सिंपली डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली डज नॉट कंस्टिट्यूट Kaizen. कोई भी चीज डिफरेंटली करना है मींस Kaizen नहीं हो गया. ओके, आज घड़े में सीधा पानी डाल रहे हैं, कल उल्टा करके डाल के देखते हैं, वी आर चेंजिंग समथिंग. नो. ओके, चेंजिंग, जस्ट चेंजिंग इज नॉट द Kaizen. कुछ भी चेंज करना मींस Kaizen नहीं है. उससे आपको कुछ तो भी बेटरमेंट मिलने को ना. अगर कुछ बेटरमेंट नहीं मिला, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मिला, इट इज नथिंग बट अ वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेस. घड़े के अंदर सीधा पानी डालना है, उसमें कुछ वेस्ट हो रहा तो आप पाइप लगा सकते हो, कुछ कर सकते हो, उसके लिए नीचे से स्टैंड बना सकते हो. दैट इज द इंप्रूवमेंट. उसको उल्टा ही कर दोगे, देखो हमने चेंज कर दिया. द वे वी आर फिलिंग द वाटर इन द पॉट, अब हम उसको उल्टा कर देते हैं सर, इट्स अ चेंज, वन ऑफ द Kaizen. बट फायदा क्या मिलेगा? वाटर तो और वेस्ट हो रहा है. ओके, सो कुछ भी चेंज करना मीन्स नॉट अ Kaizen. अंडरस्टैंड दैट. एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, the first one which we are discussing at the last, progress is impossible without the ability to admit mistake. अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, you have to admit the mistake. There is no shame in admitting the mistake that हाँ मेरी गलती थी. Yes, we have made a mistake there. Let us correct now. क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कोई मिस्टेक है, how you can improve? जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि yes there is a मिस्टेक इन द प्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ग्राफ बनाने में कुछ तो भी मिस्टेक हुई है, फॉर्मूला डालने में कुछ मिस्टेक हुई है, अनलेस एंड अनटिल आई एक्सेप्ट दैट, व्हेन आई टेक द इनपुट फ्रॉम यू पीपल, और आपने मुझे कुछ बताया और मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये तो सही है, मैं गलत नहीं हूं, सो हाउ कैन आई इंप्रूव? द प्रेजेंटेशन विच यू आर सीइंग टुडे, इट इज आफ्टर सो मेनी चेंजेस बेस्ड ऑन द accepting the mistake and changing, and sometime even making it better and better day by day, just looking for something new, changing something so that people can understand it in a better way.
तो आपके इसमें भी आप इस करके रखिए, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स गिव यू एक्सपीरियंस। ओके, सो मिस्टेक किया मीन्स इट इज नॉट द एंड ऑफ द शो, एक्चुअली इट्स द बिगिनिंग ऑफ द शो। मिस्टेक कौन करेगा? दोज हु ट्राई मेक्स द मिस्टेक, दोज हु डजंट ट्राई डजंट मेक अ मिस्टेक, है ना, बिकॉज दे हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, इट मीन्स यू आर ट्राइंग समथिंग। सो तो मिस्टेक से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम द मिस्टेक्स। ओके, फाउंडेशन ऑफ काइजन, है ना, जैसे घर का भी फाउंडेशन होता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। घर का जो फाउंडेशन होता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के ऊपर तो घर बना रहता है पूरा हमारा। तो सेम वे द फाउंडेशन ऑफ काइजन, ये काइजन का जो हाउस है ना, काइजन का जो सिस्टम है वो किस पे टिका हुआ है? तो इमाई सान, मसाकी इमाई सान, हु हैज गिवन दिस कंसेप्ट टू द वर्ल्ड, उन्होंने 10 बेसिक टिप्स ऑफर की है कि जब आपको काइजन अगर इंप्लीमेंट करना है आपके कंपनी में, सो यू हैव टू फॉलो दिस 10 स्टेप्स। वो क्या है? डिस्कार्ड कन्वेंशनल फिक्स आइडियाज, जो कन्वेंशनल फिक्स आइडियाज होती है ना, उसको डिस्कार्ड कीजिए। डू नॉट स्टिक टू द दैट कन्वेंशनल आइडियाज। ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली, वी वेर डूइंग लाइक दैट, हम ऐसा ही करते थे और ऐसा ही करेंगे। सो सबसे पहले तो हमको जो कन्वेंशनल आइडियाज है ना, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। अब आप उसको डिस्कार्ड नहीं करोगे और इंप्रूवमेंट करने की सोचोगे तो नहीं। जैसे अगर हमने जैसे नोकिया की बात है, दे डिडंट डिस्कार्डेड देयर दैट आइडिया कि नहीं नहीं कभी एंड्रॉइड पे जाना नहीं है हमको, दे डिडंट वेंट फॉर द एंड्रॉइड। उनको लगा ही नहीं कि एंड्रॉइड के लिए जा सकते हैं करके, उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो फेल हो जाएगा, और दे स्टिक टू दैट वन, एंड नाउ यू सी वेयर दे आर। ठीक है, अभी बाउंस बैक कर रहे हैं, बट इन बिटवीन दे आर टोटली लॉस्ट द मार्केट। Otherwise, earlier there were only two, the Nokia and the Sony Ericsson. Got it? Both are not there now. Why? Because they are stick to their conventional fixed ideas. They thought that no, it is not going to change. People will not accept, or it is not, say, Android will not be the next big thing. है ना, या टच स्क्रीन फोन में नहीं जाना है. And they entered late, and you can see that what is their position now. Number 2, no blame. Treat others as you want to be treated. कंपनीज में ब्लेम गेम चलते रहते हैं. हमको एज अ टीम काम करना है. Whose mistake, who had done the mistake से ज्यादा इंपॉर्टेंट है what is the mistake and how we can correct that one. So definitely one should know that from where the mistake has come, who has done the mistake, so that correction can be taken at that place also. But more important is that how we can correct this mistake now. That is more important. दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, the way you want to be get treated, because it's a team building. Without that no change will happen, or even if it happen, वो सिर्फ कुछ देर के लिए रहेगा. It is not going to give you a continuous improvement or sustenance. sustain नहीं हो पाएगा. Number 3, think positive. Don't say can't do it, say how it can be done. Management will always try to bring in some changes into the organization. कुछ नई सिस्टम्स लाना चाहते हैं, कुछ नए प्रोग्राम्स, ERP सिस्टम्स, टेस्टिंग्स हो गया, बहुत सारी चीजें ला सकते हैं. कस्टमर, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, है ना, कभी भी ना नहीं कहना है. ऑलवेज गिव द सजेशन कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इजीली कर सकते हैं. दैट शुड बी द एटीट्यूड, है ना. कैसे नहीं करने के तो 10 बहाने मिल जाएंगे, हमको निकालना है कि कैसे कर सकते हैं. और स्टार्ट में कभी भी रेजिस्टेंस रहता है. विंडोज के जब नए नए वर्जन आते हैं ना, तो दैट इवन MS ऑफिस के जो वर्जन आते हैं नए नए, देयर ऑल्सो देर इज हमको लगता है कि नहीं पुराना ही अच्छा था, बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट वन. 2-3 साल तक काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है. बट नया जब ट्राई करते हैं और हमको दिखता है कि यस द फैसिलिटीज आर मोर, अभी तो हम ये क्विकली कर सकते हैं. पुराने में स्टैंडर्ड डेविएशन तो बस एक का आता था, यहाँ पे तो अभी दोनों का अलग अलग आता है ना. पॉपुलेशन का भी आता है, से टोटल सैंपल का भी आता है, तो पॉपुलेशन का भी आता है.
ना, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फैसिलिटीज आर देयर। तो उससे हमको फिर लगता है कि नहीं, अगर हमने ना बोला तो उसी जगह हम रहेंगे, वी विल नॉट इम्प्रूव। डू नॉट सीक परफेक्शन, 50% इंप्रूवमेंट इज फाइन एट द मोमेंट। इसका मतलब हर बार आपको एकदम परफेक्ट ही नहीं करना है। हाँ, हमारा एटीट्यूड वही होना चाहिए कि हमको तो परफेक्शन की तरफ मूव करना है, बट अगर पहली बार में हम 50% भी अचीव कर पाए व्हाट वी हैव एम फॉर, है ना, पहले दिन हमने बोला कि हम 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे, हम 4 किलोमीटर भी चल गए, दैट इज फाइन। डोंट गेट अपसेट कि मैं 5 नहीं कर पाया, ये सोचिए कि हम 4 तो कर पाए, अगले दिन करेंगे 4.5 करेंगे, फिर 5 करेंगे। एम वही रहना चाहिए कि यस वी हैव टू गो 5 किलोमीटर, and again after that next step after consistently running at that particular level। तो पहले इस शॉर्ट में अगर परफेक्शन नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, बट इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे ही कोई मिस्टेक मिलती है उसको करेक्ट करना है हमको। डू नॉट वेट कि इसका इंपैक्ट हो जाएगा फिर हम देखेंगे, नो, जैसे मिस्टेक दिखी करेक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, उसके ऊपर रूट कॉजेस फाइंड आउट कीजिए और फिर उसको रूट से हटाइए ताकि इट विल नॉट रीऑकर। नेक्स्ट इज डू नॉट जस्ट स्पेंड मनी ऑन द काइजन। काइजन के ऊपर जस्ट पैसा खर्च मत कीजिए, यूज योर विजडम क्रिएटिविटी बिफोर द कैपिटल। 7, आस्क व्हाई 5 टाइम्स टू सीक द रूट कॉज। रूट कॉजेस मिलाना है आपको, आस्क द व्हाई 5 टाइम्स, व्हाई प्रोडक्ट हैज फेल्ड, व्हाई बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट, व्हाई दैट डिफेक्ट हैव ऑकर्ड बिकॉज ऑफ द मशीन issue, why that machine issue, because of the calibration issue, why calibration issue, because of the system, some system was not there to calibrate it on time। so हमको फिर काम करना पड़ेगा उस सिस्टम के ऊपर, कैलिब्रेशन के सिस्टम के ऊपर, ना कि जस्ट किसी ऑपरेटर को बता दिया कि ये ऑपरेटर ने गलत काम कर दिया, नो। तो हर बार 5 की जरूरत नहीं, कभी कभी यू विल गेट द आंसर आफ्टर 3 वाइज ऑल्सो, ठीक है। सो यू नीड टू कीप आस्किंग अंटिल यू गेट द रूट कॉज एंड टेक एक्शन ऑन द रूट कॉज। रूट कॉज पे एक्शन नहीं लेंगे, जैसे पेड़ को कुछ अगर खराबी आती है, पत्तियों को काटते रहेंगे हम कि ये पत्ती खराब हो गई है ना, उसके पत्ते खराब हो जाते हैं, लीव्स खराब हो जाती है, तो हम लीव्स को काटना इज नॉट अ सोल्यूशन। यू नीड टू गो टू द रूट कॉज, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, रूट में इशू है तो हमको फिर वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर पेस्टिसाइड करना है, रूट का डजंट मीन कि वो रूट पे ही जाके एक्शन लेना है। पेस्टिसाइड स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, बट स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड इज अ करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन के लिए फिर आपको रूट में जाके अगर हम पहले से उसको ये दे देंगे तो वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सो गो टू द रूट कॉज, रिमूव द कॉज फ्रॉम द रूट सो दैट इट डजंट ऑकर अगेन। ये नहीं कि 2 महीने के लिए चला गया, वी आर ऑल हैप्पी, अगेन इट कम बैक। सीक द विजडम ऑफ 10 पीपल रादर देन 1। हमने देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग में द पावर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। 10 लोग जब सजेशन देना शुरू करते हैं, प्रोबेबल कॉजेज बताना करते हैं ना, तो यू कैन गेट लॉट ऑफ प्रोबेबल कॉजेज। सेम वे जब आप इंप्रूवमेंट के लिए कोई आइडिया ढूंढना जाते हो, बहुत बार आप देखोगे योर ऑपरेटर दे नो मच मोर देन अस बिकॉज दे आर विद द मशीन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दे आर स्पेंडिंग एंटायर डे, एंटायर शिफ्ट टाइम विद दैट मशीन, सो दे नो दैट मशीन बेटर। वहां पे अगर कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो दे कैन टेल यू, है ना, दे आर मोर कनेक्टेड विद द शॉप फ्लोर। सो सीक द विजडम ऑफ 10 पीपल। 10 लोगों से पूछे, 10 पीपल विल टेल यू डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, देन अराइव एट अ से जस्टिफाइड आइडिया एंड इंप्लीमेंट दैट वन। और इससे क्या होता है, जब आप 10 लोगों से इनपुट लेते हो, वो आइडिया इंप्लीमेंट करते हो, तो पीपल विल रिस्पेक्ट दैट आइडिया बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम देम। वो फिर वो आइडिया को फेल करने में अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे। नहीं तो इंडस्ट्री में आप देखोगे, यू इंप्लीमेंट सम आइडिया, पीपल आर देयर टू मेक इट फेल, क्योंकि आप लोगों ने उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया, उनको ओनरशिप ही नहीं दिया है। तो इन्वॉल्व एवरीबडी, सबका सुनिए, है ना, गिव देम द ओनरशिप कि यस दिस आइडिया वाज जनरेटेड बाय यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू मेक comfort for you if you implement this idea, it is going to improve the productivity, efficiency, safety, you can tell that। 9th is base decision on the data and not opinions or experience। डेफिनेटली एक्सपीरियंस ओपिनियन काउंट करते हैं, बट जो भी डिसीजन होगा वो डेटाबेस होगा। ओके, देयर इज अ सेइंग, वी बिलीव इन गॉड, एवरीबडी एल्स मस्ट ब्रिंग डेटा। इसका मतलब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है, बाकी सब लोग तो अपना डाटा लेके आओ तभी हम विश्वास करेंगे, ठीक है।
सो आपके जो डिसीजंस है ना वो डेटा के बेस होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन द डेटा, नॉट ऑन द जस्ट ओपिनियंस और एक्सपीरियंस. एंड 10th वन, काइजन आइडियाज आर इनफाइनाइट. ये अनंत है. आइडियाज जो काइजन की है ना वो अनंत है. Improvements are not made from the conference room. Okay, it is not made from the conference room. You have to go to the shop floor. You have to be in touch with the shop floor. It is called Gemba Kaizen, है ना. जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वहां पे जब जाओगे ना वहां से पता चलता है कि एक्चुअली कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज नॉट जस्ट सिटिंग इन टू द मीटिंग रूम एंड मेकिंग अ प्लान फॉर इंप्रूवमेंट्स. Get in touch with the area where the activity is being carried out. So Kaizen is a continuous improvement, and it is a continuous improvement, and which is based on the certain guiding principle. जो हमने 10 देखे उसी का एक क्रक्स है. Good processes being good results. अच्छी प्रोसेस रहेगी तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो फिर अगेन आपको 7QC टूल्स में जाके कंट्रोल चार्ट यूज करना पड़ेगा. तो अच्छी प्रोसेस विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. तो प्रोसेस के ऊपर काम करना है. प्रोडक्ट को चेक करके कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. यस, चेकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट जस्ट चेकिंग विल नॉट गोइंग टू इंप्रूव द प्रोडक्ट. आपको तो प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस का आउटपुट है. कपड़े जो वॉश हुए कि नहीं वो देखने से आपका कपड़े वॉश नहीं होंगे. वो वॉशिंग की प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे तो कब आपको जब चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एक टाइम ऐसा आएगा यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोसेस, आपको कभी तो भी चेक करना पड़ेगा. अदरवाइज तो आपको जितने कपड़े डाले सब चेक करने पड़ेंगे, खराब तो नहीं है, क्योंकि आपको प्रोसेस के ऊपर भरोसा ही नहीं है. सेम वे आपके यहाँ पे जो पाइप्स बनते हैं या वायर्स बनते हैं या बाकी भी कोई कास्टिंग्स बनती है, गियर्स बनते हैं, जो प्रोसेस उनको बनाती है उसके ऊपर फोकस करना है. सेकंड इज गेम्बा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, गो सी फॉर योरसेल्फ. हमको जाना है और वहां से करंट सिचुएशन पता करना है. किसी के सुना सुनाई पे नहीं जाना है. गो एंड चेक व्हाट इज एक्चुअली रनिंग, बिकॉज कम्युनिकेशन में कभी कभी जो एक्चुअल सिचुएशन है और जो आप तक पहुंचती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. दैट्स व्हाई जापानीज पीपल फोकस ऑन गेम्बा काइजन. ओके, ये नहीं कि बस लोगों ने बता दिया हाँ ऐसा चल रहा है साहब, ओके ओके. नो, यू हैव टू गो एंड सी विथ योरसेल्फ. स्पीक विथ डेटा, मैनेज बाय फैक्ट्स. कुछ भी बात करना है तो टेम्परेचर कम था, है ना, बहुत ज्यादा डिफेक्ट मिले, डिफेक्ट बहुत कम हो गए एक्शन के बाद. We have the defect generation has reduced very much. How much it has reduced? How many percentage it has reduced? Whether actually it has reduced or not? हम number of defect देख रहे हैं कि percentage of the defect देख रहे हैं. So speak with the data and manage by the facts. Next is take action to contain and correct root cause of the problem. आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक्शन लेना है टू कंटेन द प्रॉब्लम, कंटेनमेंट एक्शन होना, एंड देन यू नीड टू करेक्ट द रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉजेस को भी करेक्ट करना है. देन वर्क एज अ टीम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट, काइजन इज एवरीबॉडीज बिजनेस. इट इज नॉट yours on mine. Only operator will do, only supervisor do, or only the top management will do. No, it is everybody's business. So the company as a whole to be in the Kaizen. So Kaizen के अंदर जब सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे, हाँ definitely the level of involvement will be different. So progress is impossible without change. ना कोई भी अगर प्रोग्रेस करना है, it is impossible without change. और जो लोग चेंज नहीं करते अपना माइंड, they cannot change anything. Okay, so प्रोग्रेस करना है तो you have to change something. You have to change your habits. तो हमको चेंज करना है खुद को तो भी हमको हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी. हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा. विदाउट दैट यू कैनॉट एक्सपेक्ट टू चेंज. सेम थिंग विल अप्लाई इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, योर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट. ओके, सो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे. देन एंड ओनली यू कैन सी द इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस, एंड टुगेदर वी कैन move upward. Okay, so we have to help each other so that we can move upward. So अभी हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Why we need to do the improvement a lot? पहले का जो मार्केट सिनारियो था उसमें क्या था,
प्रोडक्ट बनाने की एक कॉस्ट रहती थी, से 100 रुपीज, उसके अंदर प्रोडक्शन करने वाले प्रॉफिट जोड़ देते थे, 20 रुपए प्रॉफिट डाल दिया, 120 का बेच दिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ सेलर्स मार्केट। जैसे हमको मोबाइल फोन मिलते थे तो क्या था, बस जितना प्राइस था 5,000, 10,000, 15,000 रुपीज में नॉर्मल कीपैड के फोन मिलते थे। एंड टुडे यू कैन गेट 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज अ टच स्क्रीन मॉडल। व्हाई सो? बिकॉज नाउ it is a buyer's market. Now if somebody want to survive in the market, अगर किसी को मार्केट में सर्वाइव करना है ना, उसको अपनी कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो फिक्स है, सबको पता है कि मुझे 100 रुपीज में मिलने वाली वो चीज। सो बायर इज देयर फॉर 100 रुपीज। ओके, बायर इज देयर विद द 100 रुपीज। फिर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको कॉस्ट जो है ना प्रोडक्शन की, वही कम करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट 80 रुपीज है, यू विल गेट 20 रुपीज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। नाउ द कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी आइदर यू हैव प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट होगा 10, और अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है 95, तो आपका प्रॉफिट होगा सिर्फ 5 रुपए। और यू कैन कट डाउन योर प्रोडक्शन कॉस्ट टू 80, सो इट विल बी 20 रुपीज प्रॉफिट। और ये जो हम कट डाउन कर रहे हैं कॉस्ट, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर को तो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए विद दैट पर्टिकुलर प्राइस। आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। सो व्हाट इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट और गेटिंग द रिक्वायर्ड रेवेन्यू इज टू लोअर डाउन द कॉस्ट। और फिर वो कॉस्ट कैसे कम करना है, आपको प्रोसेस में इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे, जो वेस्टेज है उसको हटाना पड़ेगा। इट इज नॉट ऑलवेज द मैन पावर विच यू नीड्स टू टारगेट। आपको एक्चुअल जो वेस्टेज हो रहे, देयर आर सो मेनी वेस्टेजेस, एंड नॉट ओनली फिजिकल वेस्टेजेस, है ना, वेस्टेजेस इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो। एक टेस्टिंग करते हैं ना हम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी विच यूजेस रिसोर्सेस, पावर, इलेक्ट्रिक, मैन पावर, मशीन मेंटेनेंस, सब एक्टिविटी यूटिलाइज होती है। सो अननेसेसरी एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटाना पड़ेगा और वैल्यू एडेड एक्टिविटी रखना पड़ेगा, विच विल गिव द रिजल्ट्स। Today we will extend little bit, है ना, because we need to cover 5-10 minutes. Okay, so just keep in your mind, every waste has a cost and that is direct loss to the company. अब एक काइजन प्रोसेस है, so what we will do, either there are two options. We can make 15 minutes today and understand the Kaizen process, or tomorrow we will start 15 minutes early and again leave also 15 minutes early. So tomorrow's session can be of 2 hours, so to finish it properly. तो आप लोग बताइए, आदित्य जी, सुधाकर जी, विजय जी, what we should do? Sir, can we do it tomorrow? Okay, I yeah, have some work. no issue. So what we will do, tomorrow we will continue this one, and what we will do in that,